Assalamu alaikum class. First year I have already told you about important minerals such as calcium and its related compounds of magnesium and phosphate. Magnesium we already discussed about its huge amount present in bones and its importance as a skeletal as incorporated in the body skeleton. So it was also very important for the enzymatic reactions, for example phosphorylation by kinases and phosphodiester bond formation by DNA and RNA, and it was causing hyperexcitability of nerves when it was in lesser quantity in the body. Muscles and cardiac arrhythmias were caused by its reduced amount in the body, so it was very important for maintaining the stability of the nerves. And now I will tell you the importance of sodium chloride and potassium as important minerals and important ions in the plasma and in the extracellular and intracellular compartment. First of all, sodium. For it to describe the properties of sodium, if we say that it is very important osmotically active particle inside our plasma and serum, then it will define sodium properly. So sodium, when we say that it is osmotically active particle, it means that it is responsible for maintaining the proper water balance of our body, because it binds water, it imbibes water, and it maintains the normal water quantity of the plasma and the serum. So जब ये water की quantity maintain रखेगा, then it is able to regulate the normal tonicity of our body and normal blood pressures of the body. So sodium along with chloride is mainly extracellular ion present in the body. Wherever sodium is ingested, almost chloride follows it, and when sodium is excreted from the renal tubules, chloride also follow it there. Now sodium is present in large quantity in the extracellular compartment as compared to the intracellular. सेल के अंदर की निस्बत सेल के बाहर सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. And there is a special pump that is maintaining this extracellular sodium, that is always putting 3 sodiums outside of the cell at the cost of 2 potassiums that are pushed inside of the cell at the cost of the एनर्जी कंपाउंड्स. ये एटीपी डिराइव्ड पंप होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सोडियम बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इज पुश्ड आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इज पुश्ड इनसाइड ऑफ द सेल. इसलिए सोडियम की क्वांटिटी सेल के बाहर ज़्यादा ही मेंटेन रहती है और पोटेशियम की क्वांटिटी सेल के अंदर ज़्यादा मेंटेन रहती है. इसका मतलब अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा और बाहर वाली साइड पे कम होगा. सिमिलरली सोडियम बाहर वाली साइड पे ऑलरेडी ज़्यादा है और सोडियम को बाहर ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ भेजने के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, और इस एनर्जी के एक्सपेंडिचर से सोडियम का बैलेंस मेंटेन रहता है. सोडियम along with chloride are present in diet, especially table salt. आम नमक में सोडियम और क्लोराइड मुनासिब क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और इसी नमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वहाँ से आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे आर doing very special property, they have very special properties in the body, because sodium is required for glucose, galactose and free amino acid absorption from intestine and kidney. ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्री अमाइनो एसिड को अपने साथ एब्जॉर्ब करवाता है फ्रॉम द किडनी एंड इंटेस्टाइन. सिमिलरली क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HCl फॉर्मेशन इन द स्टमक. ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और HCl के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि स्टमक में बहुत इम्पोर्टेंट है. So sodium and chloride are important together for maintenance of the electrolyte balance of the body also. Now sodium की जो required quantity है in our body, इसको maintain करने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है जो कि इसको रेगुलेट करता है बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स. And there is also an atrial natriuretic peptide and antidiuretic hormone that maintains the water balance of the body. Aldosterone maintains the sodium reabsorption of the body. Now sodium के functions क्या क्या होंगे important? It is ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल, इसलिए ऑस्मोटिक बैलेंस में बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से ये वाटर बैलेंस करता है, थर्स्ट को प्रॉपरली रेगुलेट करता है इन रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर क्वांटिटी इन द बॉडी. इसी तरह से सोडियम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, उसकी जनरेशन के लिए ज़रूरी है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का रोल है. इसी तरह से सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज क्वांटिटी में अगर हो तो उसको कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया. व्हेन द सोडियम इज प्रेजेंट इन इंक्रीज क्वांटिटी इन द बॉडी दैट इज इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइपरनेट्रीमिया. और हाइपरनेट्रीमिया होगा जब सोडियम की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर. एंड हाइपरनेट्रीमिया जब सोडियम के नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन हो रहे थे उनको एग्जेजरेट करेगा और पैथोलॉजी की तरफ, डिजीज प्रोसेस की तरफ जाएगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा. सो हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेज होंगे व्हेन द हार्मोन दैट वाज बैलेंसिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल बी इंक्रीज्ड इन अमाउंट. जब एल्डोस्टेरॉन की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कर देगा, देन देयर विल बी अ स्टेट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया. और हाइपरनेट्रीमिया जितना ज़्यादा होगा उतना वाटर भी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा और हाइपरटेंशन विल बी रिजल्ट. ब्लड प्रेशर लेवल ज़्यादा हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन द सोडियम लेवल विल बी लो, द स्टेट विल बी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. 1 ग्राम से नीचे चला जाएगा जब सोडियम, तो देयर विल बी अ स्टेट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. और हाइपोनेट्रीमिया के अपने कॉजेज क्या होंगे? एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाए, वॉमिटिंग से सॉल्ट, बॉडी विल बी डिप्लीटेड ऑफ द सॉल्ट सच एज HCl एंड सोडियम. और उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर की और सोडियम की क्वांटिटी कम हो जाएगी. रिजल्ट विल बी हाइपोनेट्रीमिया. सिमिलरली डायरिया में भी एक्सेसिव लॉस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और वो भी एक कॉज है हाइपोनेट्रीमिया का. बर्न्स एंड एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज में होगा एड्रीनल इनसफिशिएंसी. एड्रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब है कि एल्डोस्टेरॉन जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहा था, जो कि सोडियम का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, देयर विल बी एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी. और एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी जब एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा तो देयर विल बी लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम सारा रीनल एक्सक्रीशन में ज्यादा चला जाएगा, और फिर द स्टेट विल बी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. सिमिलरली इन सीवियर स्वेटिंग, just like diarrhea and severe vomiting, sodium is lost considerably. और जब भी सोडियम लॉस्ट होगा तो there will be a state of muscle cramps and headache. severe headache होगा और ब्रेन डैमेज करेगा, बिकॉज ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलिटी कर रहा था वो दोनों फंक्शन सोडियम के लॉस्ट हो जाएंगे. Now we come to the chloride. Chloride was equally important as that of the sodium, और डाइट में भी ऑलमोस्ट सोडियम के साथ पाया जाता है. एब्जॉर्प्शन भी इसकी सोडियम के साथ इंटेस्टाइन से होती है, और एक्सक्रीशन भी सोडियम के साथ को रिलेटेड है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स.
Now, the important function of colloid is to maintain the acid-base balance of the body. और ये क्लोराइड शिफ्ट में इम्पोर्टेंट है, ये HCl की फॉर्मेशन जो स्टमक में है इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, और ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस और उसके एसिड बेस बैलेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। क्लोराइड की क्वांटिटी अगर बॉडी में हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उस स्टेट को कहेंगे हाइपर क्लोरीमिया। और हाइपर क्लोरीमिया के कॉजेज भी इसी तरह से जैसे सोडियम के हमने कॉजेज निकाले थे, तो हाइपर क्लोरीमिया क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कॉजेज में डिहाइड्रेशन आएगी, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिस तरह से कि एल्डोस्टेरोन and the other hormones that are regulating the reabsorption from the kidney वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल्स ख़राब हो जाएंगे, तो उससे हाइपरक्लोरीमिया होगा। सिमिलरली जब डायरिया होगा, डायरिया में भी मिनरल लॉस होगा, बाइकार्बोनेट लॉस होगा बॉडी से, और उससे क्या होगा कि देयर विल बी compensatory retention of the chloride from the kidney and the intestines। तो इससे क्या होगा, क्लोराइड लेवल ज्यादा हो जाएगा। सो एक्सेसिव डायरिया, एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड द कंडीशंस इन विच द mineralocorticoid levels are disturbed, तो there will be a state of hyperchloremia। क्लोराइड लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, और क्लोराइड लेवल ज़्यादा जो है वो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ना वो मेंटेन नहीं रखते। इसी तरह से हाइपोक्लोरीमिया है जिसमें क्लोराइड लेवल्स कम हो जाते हैं, और क्लोराइड लेवल्स कम होने के भी इसी तरह से रीज़न है, एक्सेसिव वॉमिटिंग आ जाएगी जिसमें देयर विल बी लॉस ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक, तो क्लोराइड लेवल्स विल बी लोड। एंड इसी तरह से एडिसन्स डिजीज़ है जिसमें एल्डोस्टेरोन जो है, एडिसन्स डिजीज़ जिसमें एड्रीनल इंसफिशिएंसी है, एल्डोस्टेरोन इंसफिशिएंसी है। एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल था सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए किडनी की ट्यूब्यूल से, और जैसे ही सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगी तो क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और देयर विल बी अ स्टेट ऑफ हाइपोक्लोरीमिया, क्लोराइड के लेवल्स कम हो जाएंगे। और ये दोनों ही लेवल्स जो हैं डिस्टर्ब अगर हो जाएं, हाइपो एंड हाइपर क्लोरीमिया, तो ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को ख़राब करते हैं। नाउ वी कम टू पोटेशियम। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जूसेस। ऑरेंज जूस में ज़्यादा होता है, डेट्स में ज़्यादा होता है। एंड पोटेशियम concentration difference of potassium and sodium across the cell membrane is maintained by sodium potassium ATPase। और ये बहुत important function है पोटेशियम का इन द बॉडी, कि ये सोडियम पोटेशियम ATPase जो है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये पोटेशियम की क्वांटिटी सेल के अंदर मेंटेन रखता है। जैसे हमने पहले देखा है सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था, इसी तरह से पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, और इन दोनों की क्वांटिटी अगेंस्ट द ग्रेडियंट मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक तो इसका फंक्शन है कि ये एनर्जी एक्सपेंडिचर पे अपनी क्वांटिटी जो है ATPase इसकी क्वांटिटी सेल के अंदर मेंटेन रखता है। दूसरा, इट कास्ट मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन इन्वॉल्व इन एसिड बेस बैलेंस भी है। ये इसकी सोडियम के साथ इनकॉर्पोरेशन में ये एसिड बेस बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली देयर आर द कंडीशंस जिनमें के a state result of reduced potassium in the body, and the condition will be called as hypokalemia, जिसके के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब भी हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो इंसुलिन सेल के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होती है तो पोटेशियम को सेल के अंदर पुश कर देती है। सो देयर हाइपोकलीमिया रिजल्ट्स इन सीरम। तो हाइपोकलीमिया से मसल वीकनेस होती है, मसल फटीक होती है, और ECG चेंजेस आएंगी। ECG पे T वेव्स विल बी फ्लैट। सिमिलरली इन स्टेट ऑफ हाइपरकैलीमिया, जिसमें पोटेशियम लेवल्स जो है नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें ECG चेंजेस फिर आती हैं जिसमें कि T वेव्स टॉल हो जाती हैं,
और कार्डियक एरिथमियाज जो कि रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं जो दैट कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक डिसरिदमियाज और कार्डियक डेथ भी हो सकती है ड्यू टू टेकिकार्डियाज। तो हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया के डिफरेंट कॉजेज हैं और ये पोटेशियम लेवल की डिस्टर्बेंसेस जो है ये विद इन द वेरी नैरो रेंज बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम ऑलमोस्ट 3.5 से 5 मिली इक्वल पर लीटर तक होना चाहिए। 3.5 से कम हाइपोकैलीमिया होगा, 5 से ज़्यादा हाइपरकैलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया कार्डियक मसल्स के लिए बहुत डेंजरस है, कार्डियक एरिथमियाज करेगा। हाइपोकैलीमिया मसल फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस की तरफ लेके जाएगा और इंटेस्टाइनल मसल पैरालिसिस भी करेगा और स्केलेटल मसल पैरालिसिस भी करेगा। सो पोटेशियम लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द न्यूरोमस्कुलर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, एक्शन पोटेंशियल्स एंड फॉर एसिड बेस बैलेंस एंड मस्कुलर इंटेग्रिटी ऑफ द cell. Then we will study in the next lecture about important mineral of zinc and its important functions.